Are you able to see the visualizer? Yes, it is. Uh, are you able to see the Yes, visualizer? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So what we will do, we'll take one empty array over here. Okay. That is my ARY. This is an empty array of 4 locations. We'll declare over here one pointer, one integer int and summation. Okay. So for first, okay. First what we will do, first we'll assign the address of array's first location. How we are going to assign? While assigning the address to the pointer, we are using operator ampersand and. Okay. Then my ARY, the first location is what? Zeroth location, because our indexing of array start with 0. In this way we have assigned to it. Okay. Now what we have to do? We have to store the numbers into the array. Okay. By using pointer. How we are going to store? By using pointer. Okay. So uh, for accessing array, we are going to use for loop. So the indexing of array start with 0. So I equal to 0. It should be up to 3. So I should be less than 4 and I plus plus. This is the for loop to access the array. Okay. Now in this, what I have to do? I have to put the element. I have to put the element to the array by using pointer. Okay, so what I will do, I will use star p1 equal to whatever value of I plus 2. This is a value I'm going to put into the array and I'm going to increment the array. Okay, we'll check how it works. This is the way. First we are going to store the value I plus 2, whatever the value of I. Then first iteration value of I is 0, so 0 plus 2 is 2. Like this way it is going to be stored into the array. Okay. Here semicolon is missing. Now the array is created. This is the pointer. It is mentioned over here, integer and sum. Okay. Now first it is line number 7. When line number 7 is executed, p1 is equal to and my array of 0. So the p1 is pointing to the 0th location of array. Okay. What we are going to do? 0. Now 0 plus 2 value is put into. Now you can see int first location है, वहां पे 2 value save हो गया है. Okay. कौन सा value save हो गया है? 2. You can see it properly now. Next, when I say p1 plus plus, it is pointing to the next location. And next value is stored. The next value is stored. Okay, and next value is stored. Like this way, by using a pointer, we have what we have did. We have stored the values into the array. Okay, this is the way star p1 star p1. This is the way we are going to access the location. Okay, and we are going to write onto that particular location. So when we want a data pointed by the address of pointer. Okay, whatever pointer में क्या रहता है? The address of variable. So if I want to take the value from that particular address, okay, and if you want to save the value at that particular address, we are going to access as a star pointer. Okay, कैसे access करने वाले हम? As a star pointer. Now I will edit this course code. 1 second, just
Now again, now what happens, your pointer p1 plus plus करके कहाँ पे चला गया है, वो pointer at the last location. Again I will point to this. Okay, again I am going to use a for loop. And what we are going to do in previous for loop, what we have did, we have saved the value into the array. Now we are going to use sum equal to sum plus star p1. Okay, like this way we are going to add the value. Okay, add the value array addition by using pointer, and again we are going to increment this, and at the last we will printf, we will print the value of summation. Addition of array is summation. Okay. So here again I'm going to pointing the pointer to the first location of array, that is 0th index of array. Then again for loop for accessing the array. Then summation is equal to sum plus star p1. Okay. Now first loop as it is, in the first it is going to be save the value. Okay, पहला जो loop है for loop, line number 8 to line number 12 तक. Okay, it will run for 4 times this for loop. Okay, and it will save the value into the array. Now in this first for loop we have saved the value into the array. Now in second again the pointer is pointing where? Now again the pointer after execution of line number 13, p1 is equal to ampersand of my array of index 0. It is pointing to the my index of 0. Okay, and now here it will be add. Okay, now it is going to be add sum equal to 2 हो गया है, देखो नीचे sum equal to 2. Now next 2 plus 3 it will be 5. Okay, now next 5 plus 4 it will be 9, and next plus 5 is it will be 14. Okay, so like this way, this is a program for array addition, or this is the way we can access the array and we can put the value into the array. We can take the value from a array. This is the example. This is the example where we have put the value into the array by using pointer, and we have accessed the value of a array by using pointer. Okay, array में वैल्यू कैसे डालना है पॉइंटर यूज करके, और अरे में से वैल्यू कैसे निकालना है पॉइंटर यूज करके. दिस इज द एग्जांपल. ओके, this is the one thing. Next point is, so when you are going to access the array, what you have to do. Okay, previous lecture we have discussed this point. Okay, अगर हमें कोई भी वैल्यू लेना है तो we are using star operator and pointer name. Like this way we can take the value pointed by that pointer. Okay, and when we are using plus plus operator, it will point to the next location. Okay, so next जो भी मेमोरी लोकेशन एड्रेस रहेगा उसको वो पॉइंट करने वाला है प्लस प्लस ऑपरेटर. ओके, now next program is pointer to the pointer. Okay, pointer to the pointer. One second. Now here you are seeing this. Suppose I have a one variable. This is my variable. Okay, value. This is one variable, and this variable is having a address 8000. Okay, this is the address 8000. The address of this variable is saved into the pointer 1. Okay,
सो पॉइंटर वन कंटेन व्हाट, पॉइंटर वन के अंदर क्या वैल्यू है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर वन के अंदर वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। नाउ दिस पॉइंटर वन इज ऑल्सो हैविंग सम एड्रेस। ओके, ये पॉइंटर वन ने क्या किया है, कुछ तो वैल्यू सेव किया है। सो पॉइंटर वन वैल्यू सेव करता है, मतलब उसे भी कोई तो मेमोरी लोकेशन लगेगा। नाउ द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वन, पॉइंटर वन का एड्रेस क्या है, 5000, that is going to be saved into the another pointer. Okay, that is pointer p2. So this is called as a pointer to the pointer. What a point, first pointer, what it will do, the pointer will save the address of variable. Okay, first pointer का काम क्या है, p1 का, it is going to save the address of variable. Okay, so the value of pointer, value of pointer क्या है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का एड्रेस क्या है 8000। नाउ दिस पॉइंटर हैज एड्रेस, इस पॉइंटर का एड्रेस क्या है 5000, ये उसका एड्रेस है। ओके, 5000 पॉइंटर वन का एड्रेस है और पॉइंटर वन का वैल्यू क्या है 8000। ओके, नाउ ये 5000 जो पॉइंटर वन का एड्रेस है वो हम दूसरे पॉइंटर में डालेंगे, पॉइंटर टू में, और पॉइंटर टू में उसका वैल्यू बन जाएगा 5000। पॉइंटर टू इज ऑल्सो हैविंग सम एड्रेस दैट इज 1001। ओके, so this is called as a pointer to the pointer, and by using this p2 also we can save the value into the variable. हम p2 यूज करके भी वेरिएबल में वैल्यू सेव कर सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग, p2 यूज करके भी हम वेरिएबल में वैल्यू सेव कर सकते हैं। p2 इज व्हाट, पॉइंटर टू द पॉइंटर वन। p2 क्या है, p2 इज अ पॉइंटर टू द पॉइंटर वन। नाउ प्रॉपरली गेट द कॉन्सेप्ट दिस। ओके, अभी हमने सिर्फ सिंपली पॉइंटर देखा था, पॉइंटर का भी एक पॉइंटर होता है, मतलब उस पॉइंटर का एड्रेस दिखाने के लिए दूसरा पॉइंटर होता है। सो विल सी दैट कोड। मैम, यस, मैम वो स्लाइड आप एक बार फिर से रिपीट करना ना। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो मेरा c है ये वेरिएबल है। c क्या है, एक वेरिएबल है, वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू है c। ठीक, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब हम कहाँ पे भी तो स्टोर करते हैं, कहाँ पे, वेरिएबल मतलब कुछ डेटा सेव करते हैं, राइट। जो भी डेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू उसका वेरिएबल रहेगा। सो जो वेरिएबल हम डेटा सेव करने वाले, कहाँ पे सेव करने वाले, एक एड्रेस पे। सो ये है उसका एड्रेस 8000, एड्रेस क्या है 8000। ठीक है, अभी पॉइंटर का डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर विल सेव द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर का काम क्या है कि वो वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है। तो ये जो मेरा वेरिएबल है वैल्यू नाम का, ये वैल्यू नाम है उसका, वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस है 8000। वो कहाँ पे सेव हो गया है, पॉइंटर में सेव हो गया है। कहाँ पे, पॉइंटर में। सो पॉइंटर भी एक मेमोरी लोकेशन है। ओके, सेव करेगा मतलब पॉइंटर भी सेव करेगा ना। सो पॉइंटर एक खुद मेमोरी लोकेशन है। ओके, वेरिएबल भी खुद एक क्या है, मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल भी खुद एक मेमोरी लोकेशन है, पर पॉइंटर के अंदर डेटा नहीं रखते हैं। पॉइंटर के अंदर क्या रखते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंटर के अंदर हमने वेरिएबल का एड्रेस डाला है। किसका एड्रेस डाला है, वेरिएबल का एड्रेस डाला है। पर अभी ओके, अभी ये जो पॉइंटर है एड्रेस डाला है, मतलब उसने सेव किया है ना पॉइंटर में। सो पॉइंटर भी एक मेमोरी लोकेशन है। तो पॉइंटर का खुद का एड्रेस क्या है 5000। ओके, और पॉइंटर के अंदर क्या लिखा है 8000 लिखा है। ओके, तो ये जो पॉइंटर का एड्रेस है 5000, ये अगर मुझे कहीं दूसरे जगह पे सेव करना है तो मुझे इस पॉइंटर के लिए एड्रेस सेव करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए। तो हम इस पॉइंटर के लिए दूसरा पॉइंटर डिफाइन करेंगे। ओके, हम यहाँ पे पहला पॉइंटर हमने किसके लिए डिफाइन किया है, पहला पॉइंटर हमने डिफाइन किया है वेरिएबल के लिए। ओके, सो नॉर्मल पॉइंटर का काम क्या है, इट विल सेव द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये है हमारा नॉर्मल पॉइंटर। पहला पॉइंटर क्या है, पॉइंटर वन, और फर्स्ट पॉइंटर इट विल सेव द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंटर क्या है, इट विल सेव द एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, अभी ये P1 का एड्रेस क्या है 5000, वो चला जाएगा P2 के अंदर। ओके, आर यू गेटिंग दिस? Okay, we'll see into the visualizer also.
सिंपल कोड हम देखते हैं विजुअलाइजर में। और अभी आप देखिए कि हमें ये वैल्यू एक्सेस करनी है। ओके, वेरिएबल 1 की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हमने P1 से एक्सेस करना है तो हम कैसे यूज करते हैं, वैल्यू अगर देखना है तो हम स्टार P1 करके यूज करके देखते हैं। ओके, we'll see into the visualizer, then you'll come to understand this. ओके, यहाँ पे मैंने एक क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लिया है a, then I have taken a pointer star P1 and बिकॉज ये पॉइंटर P1 क्या करने वाला है, a का एड्रेस सेव करने वाला है, ठीक है। एंड I'm going to put what I'm going to put, I'm going to put the स्टार P2। ओके, हम क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे, P2। सो यहाँ पे देखो, हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर फॉर अ पॉइंटर, इट इज डबल स्टार। ओके, line number 5 it is a declaration for pointer to the pointer। सो सबसे पहले लाइन नंबर 6 हमने क्या किया है, P1 में डाला है एड्रेस ऑफ A। P1 में क्या डाला है, एड्रेस ऑफ A। और P2 में क्या डाला है, एड्रेस ऑफ P1। ओके, दैट इज एम्परसेंड एड्रेस ऑफ P1। जस्ट विल विजुअलाइज दिस। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, P1 इज पॉइंटिंग टू A एंड P2 इज पॉइंटिंग टू P1। ओके, मतलब P1 में हमने एड्रेस डाला है A का और P2 में डाला है हमने एड्रेस P1 का। सो विल चेक दिस। To check the address, what we have format specifier, what format specifier we have used? %x. Yes, we have used the format specifier %x. Okay, so first we'll check address of A is %x comma, that is and of A। ठीक है, that I have kept into this। Okay, same way address of P1 is hx/n
and P1. P1 is also having some address. Okay. What we will do, we'll check this also. Now you can see the pointer P1 is pointing to A, pointer P2 is pointing to P1. Now here we can see address of A क्या आया है यहाँ पे ऊपर के बॉक्स में देखो, that is FF00BCC. Okay. Now again the address of A stored in P same है. ओके. पी के अंदर क्या स्टोर्ड है? पी के अंदर क्या स्टोर्ड है? पॉइंटर. हमने क्या किया है? लाइन नंबर 7 पे देखो, P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए. दैट मीन्स इन P1 वी हैव स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ ए. सो P1 के अंदर, ओके, P1 अगर एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर एड्रेस ऑफ ए चला गया है, पर P1 का खुद का एक एड्रेस है. दैट वी विल सी नाउ हियर. P1 का खुद का एड्रेस क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, द एड्रेस ऑफ P1 इज FF00BD0. ओके. सो ये P1 का एड्रेस हमने कहाँ पे डाला है? P2 में डाला है. तो हमें क्या देखना पड़ेगा? वैल्यू स्टोर्ड एट P2. क्या देखना पड़ेगा? वैल्यू स्टोर्ड एट P2. सो हम क्या करेंगे? Okay. Now you can see here in this box. See carefully. The address of A क्या है? FF00BCC. The address of A is FF00BCC. Now this address will go
ओके, द एड्रेस ऑफ ए स्टोर्ड इन P1 इज, ठीक है, सेम है, P1 में A का एड्रेस है और P1 का क्या एड्रेस है, P1 का एड्रेस क्या है, FF00BD0, ये है P1 का एड्रेस। अभी P1 का एड्रेस हमने किस में स्टोर किया है, लाइन नंबर 8, P2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ P1। सो हम देखते हैं, द एड्रेस ऑफ P1 स्टोर्ड इन P2 इज FF00BD0, मतलब P2 के अंदर P1 का एड्रेस है और P2 में सेव किया है ना, तो P2 को भी कुछ तो एड्रेस रहेगा। So if we go to this, P2 address is FF00BD8. Okay. Now, are you getting? P2 will save the address of P1 and P1 will save the address of A. Okay. So P1 is a normal pointer which is declared at line number 5, integer star P1. P2 will save the address of pointer P1. So P2 is a pointer to the pointer. P2 क्या है, pointer to the pointer. And the declaration of pointer to the pointer is at line number 6. Integer asterisk asterisk P2. Okay, this is the way we are going to declare pointer to the pointer. This is the way we are going to declare pointer to the pointer. Now you have now it is clear concept to you. Okay, what is pointer Yes. to the pointer? Okay, now what we will do, we'll check how to change the value or how to access the value at integer a. integer a का value हम पॉइंटर P1 से कैसे बदलेंगे और पॉइंटर टू द पॉइंटर P2 से कैसे बदलेंगे, ठीक है। Now see carefully. A equal to 100, line number 9. A equal to 100, line number 9. So this is the value of A. ये क्या है, वैल्यू ऑफ A है। अगर मुझे A का वैल्यू देखना है तो मैं कैसे चेक करूंगी, ओनली स्टार P1। और अगर मुझे A P1 से देखना है, P1 से अगर मुझे A का वैल्यू चेक करना है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, लाइन नंबर 10 पे देखो, स्टार P1। अगर A का वैल्यू मुझे चेक करना है बाय यूजिंग पॉइंटर P2, सो P2 पहले जाएगा P1 के पास, P1 में से वो जाएगा A के पास, ऐसे वो हमें देखना है। तो वहां पे हम यूज करेंगे डबल स्टार P2, दैट इज डबल एस्ट्रिक P2। ओके, दिस इज द नॉर्मल वे। नाउ A equal to 100 I have written. Same way I need to change the value of A by using first pointer P1. So how I am going to write, line, check the line number 13. Star P1 asterisk P1 equal to 200. So this actually we are changing the variable value A का वैल्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे बाय यूजिंग पॉइंटर P1 यूज करके हमने A का वैल्यू चेंज किया, फिर हमने उसे प्रिंट किया। तो प्रिंट करते समय हमने कैसे चेक किया, पहले हमने चेक किया बाय यूजिंग पॉइंटर P1 से चेक करना है A का वैल्यू तो एस्ट्रिक P1, और पॉइंटर P2 से चेक करना है तो डबल एस्ट्रिक P2, बिकॉज P2 इज अ पॉइंटर टू द P1। अभी हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 19, डबल स्टार दैट इज डबल एस्ट्रिक P2 इक्वल टू 300। so we are changing the value of variable A by using pointer P2। okay, and again we'll see this is again going to be change the value of A। किसका वैल्यू चेंज कर रहा है, वो A का चेंज कर रहा है, because here we have written asterisk P2। so the value changed by using P2 is स्टार P1 एंड डबल स्टार P1 से हम चेक करेंगे। Then we'll visualize this।
simply line number 7, P1 equal to address of A. line number 8, P2 is equal to address of P1. ठीक है, now A equal to 100, A में क्या वैल्यू चला गया 100. ठीक है, अभी लाइन नंबर 10 देखो, वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी, दिस वैल्यू ऑफ ए वी आर चेकिंग, ए का वैल्यू हम चेक कर रहे हैं. कैसे चेक कर रहे हैं? बाय यूजिंग पॉइंटर 1. पॉइंटर 1 से चेक करना है तो वी हैव यूज्ड हियर एस्ट्रिक P1 and the value of a, again we are checking value of a by using pointer P2. पॉइंटर P2 पहले जाएगा P1 के पास, फिर P1 जाएगा A के पास. सो पॉइंटर P2 से हमें A का वैल्यू चेक करना है, तो वी हैव रिटन हियर डबल एस्ट्रिक P2. ओके, सो विल सी हियर वैल्यू ऑफ A इज 100. नेक्स्ट लाइन देखो, बॉक्स में वैल्यू ऑफ A इज 100, दोनों जगह पे 100 ही दिखा रहा है. वी आर चेकिंग द वैल्यूज. ओके, हम क्या चेक कर रहे हैं? वैल्यूज. सो वैल्यू चेक करना है फर्स्ट पॉइंटर से तो एस्ट्रिक P1, डबल सेकंड पॉइंटर से तो डबल एस्ट्रिक P2. ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये A का वैल्यू जो है वो हम चेंज करेंगे बाय यूजिंग पॉइंटर P1. सो A का वैल्यू हमें चेंज करना है बाय यूजिंग फर्स्ट पॉइंटर, तो हम क्या लिखेंगे? एस्ट्रिक P1 इज इक्वल टू 200. नाउ लाइन नंबर 13 जब रन होगा तो अभी यहाँ पे देखो A का वैल्यू क्या बन गया? 200. नाउ लाइन नंबर 16 हम ये नया वाला वैल्यू चेक कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ A चेंज यूजिंग P1, इट इज एस्ट्रिक P1 एंड डबल एस्ट्रिक P2. तो बॉक्स में देखो अभी वैल्यू चेंज हो गया. द वैल्यू ऑफ A चेंज यूजिंग P1 इज 200 एंड द वैल्यू ऑफ चेंज यूजिंग P1 इज 200. ये दोनों सेम मैसेज क्यों आ रहे हैं? पहले हमने वैल्यू चेक किया है. लाइन नंबर 16 देखो, वैल्यू चेक करते समय हमने पॉइंटर P1 को यूज किया है. लाइन नंबर 17, वैल्यू चेक करते समय हमने पॉइंटर P2 को यूज किया है. ओके, और वैल्यू किसका दिखा रहा है? वेरिएबल का ही दिखा रहा है. नाउ लाइन नंबर 19, सी केयरफुली, डबल एस्ट्रिक P2 इज इक्वल टू 300. दिस इज द वे वी आर changing the value of variable A by using pointer P2. Okay, we are changing the value of A by using pointer P2. Okay, so ये रन हो जाएगा तो क्या होगा? अभी देखो A का वैल्यू क्या हो गया? 300. डबल एस्ट्रिक P2 means what? First it will point to the P1, first asterisk. Second asterisk P1 will point to the variable A and it will change the value of variable A. And if we print this, we'll get the value 300. Okay, now this is the way we are using pointer to the pointer. Okay, उसका example देखा हमने, how to assign pointer to the pointer and how to access the value or how to change the value of a variable by using normal pointer and by using pointer to the pointer. Okay, any doubt in this? मैम Yes. मैम जैसे अब हमने P2 का वैल्यू P1 में लिया तो हमने वैसे P3 तो ले सकते हैं ना, P3 का वैल्यू P2 में. Yes, we can do this pointer to the pointer, pointer to the pointer. We can do this. Okay, and number of asterisk you can increase accordingly. Okay, अभी थर्ड पॉइंटर लेंगे तो थर्ड 3 asterisk यूज करो. नंबर ऑफ asterisk we are increasing accordingly. Okay, because हर एक पॉइंटर, ओके, कोई भी मेमोरी लोकेशन हम कैसे डिफाइन करना है? मेमोरी लोकेशन मतलब एक खाली डब्बा रहेगा, उसके अंदर हम कुछ तो सेव करेंगे और उस डब्बे को एक नंबर देंगे, एड्रेस देंगे, वो रहेगा उसका एड्रेस. ओके, सो पॉइंटर भी क्या है? एक डब्बा है, उसके अंदर डेटा नहीं सेव होने वाला, उसके अंदर एड्रेस सेव होगा, पर उस डब्बे को भी कुछ तो एड्रेस रहेगा. ठीक है, लाइक दिस वे. ये जो है पॉइंटर P1, यहाँ पे भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है पर वैल्यू नहीं दिखाई दे रही. इसके अंदर क्या वैल्यू है? A का एड्रेस है. और पॉइंटर 2 है, उसके अंदर क्या वैल्यू है? P1 का एड्रेस है. ठीक है, और A वेरिएबल है, वेरिएबल, तो उसके अंदर हमने वैल्यू डाला है तो हमें वो वैल्यू दिखाई दे रहा है. ओके, नाउ हाउ टू use pointers in a function. Okay, how to pass the pointers to the function. अगर हम कोई फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, ओके, पैरामीटर पास करते हैं तो हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं? इंटीजर. ओके,
ऐसे पैरामीटर पास करते, कैरेक्टर, फ्लोट, ये पैरामीटर पास करके हम फंक्शन में वो पैरामीटर यूज करते हैं। ओके, फंक्शंस हमने स्टडी किया है। अभी वो जो पैरामीटर पास करते हैं, उस पैरामीटर पास करते समय अगर मुझे पॉइंटर पास करना है, क्या पास करना है, पॉइंटर, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है। ओके, दिस इज अ फंक्शन swap. The name of a function is swap, and this is the way we pass the pointer as a parameter of function. यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट जो रहता है, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। तो कौन से पैरामीटर पास किए मैंने? इंटीजर स्टार a1, इंटीजर स्टार b1, दैट इज इट इज अ पॉइंटर। नहीं हो रही, स्लाइड्स वो नहीं हो रहा। क्या दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? मैम अब दिखा मैम। ओके, आर यू एबल टू सी द विजुअलाइजर? Yes, ma'am. अभी यहाँ पे देखो, मैंने दो नंबर लिए हैं, इंटीजर नंबर 5 and integer number 2 is equal to 7, and I have declared two pointers star p1 star p2. I have declared this in a single line. Okay, ये declaration हो गया। number 1 and number 2 are the normal integers, and यहाँ पे star star दिया है, तो this is a declaration of a normal pointers. Okay, so p1 में क्या लिया है? address of number 1, p2 में लिया है address of number 2, and we declare, and what we will do, we will print here number 1 and number 2 हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। फिर यहाँ पे जो मेरा स्वैप नाम का फंक्शन मैंने लिखा है ऊपर लाइन नंबर 3 पे, इसको हमें दो पॉइंटर्स पास करने हैं, पॉइंटर p1, पॉइंटर p2। यहाँ पे मैंने इंटीजर t लिया है, तो t में आएगा एस्ट्रिक a, मतलब पॉइंटर जो भी रहेगा उसके अंदर का वैल्यू t में चला गया, और एस्ट्रिक a की जगह पे एस्ट्रिक b, मतलब b का वैल्यू चला गया a में और b में चला गया t, सो दैट इज स्वैपिंग। ओके, मतलब मुझे पहले का वैल्यू दूसरे में डालना है, तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे, तो पहले का वैल्यू तीसरे में डालेंगे। ओके, पहले का वैल्यू किस में चला गया? तीसरे में चला गया, दैट इज पहले का वैल्यू t में चला गया, और पहले में दूसरे का वैल्यू डालेंगे, दैट इज b का वैल्यू a में डालेंगे, और b में जो तीसरा में रखा था वो a में डालेंगे। दिस इज स्वैपिंग, वी हैव डिड द स्वैपिंग। a की जगह पे b स्वैप करना है, तो डायरेक्टली स्वैप करेंगे। a इक्वल टू b मैंने लिख दिया, तो क्या होगा? a का वैल्यू लॉस्ट हो जाएगा ना। a इक्वल स्टार a एस्ट्रिक a इक्वल टू एस्ट्रिक b में डायरेक्टली लिखती हूँ, तो a के अंदर जो मेरा नंबर था वो तो ओवर राइट हो जाएगा। ओके, तो वो पहले मुझे सेव करके रखना पड़ेगा, तो मैंने कहाँ पे सेव किया है? t में। पहले मैंने a को सेव कर दिया t में, फिर b का वैल्यू a में डाला, और फिर जो a का वैल्यू t में डाला था वो मैंने b में डाल दिया। लाइक दिस वे वी स्वैप a एंड b, पोजीशन हमने स्वैप कर दिए। ओके, सो दिस इज द वे फंक्शन के अंदर मुझे अगर पॉइंटर पास करना है, अगर हम नॉर्मल इंटीजर पास करते तो मैं यहाँ पे क्या लिखती? इंटीजर a इंटीजर b ऐसे लिखती। ओके, पर मैं यहाँ पे किसको पास कर रही हूँ? पॉइंटर का पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार a स्टार b। ओके, नाउ हियर आई हैव line number 14 and 15. I have assigned the address of variable num to number 1 to the p1 and address of number 2 to the p2. And before swapping we print the values, number 1 and number 2 का वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। फिर हम ये p1 and p2, okay, now while passing the pointers to the function, we are just using a name p1 and p2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एस्ट्रिक नहीं लिख रहे, एस्ट्रिक फंक्शन डिफाइन करते समय ही लिखना है।
फंक्शन कॉल करते समय, लाइन नंबर 19, फंक्शन कॉल करते समय अगर हम पैरामीटर जो है फंक्शन के पैरामीटर हमारे पॉइंटर है तो वहां पे एस्ट्रिक नहीं देना है, सिंपली पॉइंटर का नाम लिखना है P1 एंड P2। फिर यहाँ से मेरा फंक्शन कॉल होगा और ये वैल्यू स्वैप होंगे, और वैल्यू स्वैप होने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने वैल्यू कैसे स्वैप किए, बाय यूजिंग पॉइंटर हमने स्वैप किए हैं, और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 यहाँ पे उसके वैल्यू स्वैप होने के बाद दिखाई देंगे। ओके, so P1 pointing to the number 1 and P2 pointing to the number 2, that is line number 14 and 15 एग्जीक्यूट हो गए। लाइन नंबर 17 रन होगा तो ये प्रिंट आउट बॉक्स में आउटपुट दिखाई देगा हमें। बिफोर स्वैपिंग नंबर 1 इक्वल टू 5 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 7। नाउ स्वैप फंक्शन कॉल हो रहा है, स्वैप फंक्शन कॉल हो गया, इट विल गो टू द लाइन नंबर 4 एंड व्हाट विल हैपन, नाउ चेक हियर। ओके, नाउ हियर what is happening, a is nothing but मैंने पास जब किया था तो पास करते समय मैंने क्या पास किया था, swap p1 p2, so this p1 is assigned to the a and p2 is assigned to the integer that is pointer b, so now a pointing, okay, so यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है, a this will a is pointing to the number 1, a देखो रेड कलर का आ रहा है, दिख रहा है, a is pointing to the number 1, और b को देखते हैं तो b is pointing to the number 2। okay, now what we will do, we'll swap the value, वैल्यू स्वैप हो रहा है, पॉइंटर उसी जगह पे रहेंगे, पॉइंटर नहीं स्वैप होंगे। ओके, सो वैल्यू स्वैप हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गया। ओके, नंबर 1 में 7 चला गया, नंबर 2 में 5 चला गया। ओके, एंड दिस पॉइंटर विल पॉइंटिंग टू द सेम। ओके, हमने क्या किया है, इंटरनल वैल्यू चेंज किया है, just we copied the values but the pointer is pointing, p2 is pointing to the num2 and यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, p1 is pointing to the num1 but the internal value we have changed। okay, so while passing pointer as a parameter of a function, ठीक है, पॉइंटर को फंक्शन का पैरामीटर यूज करना है तो फंक्शन डिक्लेयर करते समय, लाइन नंबर 3, फंक्शन डिक्लेयर करते समय हमें इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर लिखना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ इंटीजर लिख के नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे इंटीजर p1 जो है उसको अलग नाम देंगे, एस्ट्रिक a एंड एस्ट्रिक b, so asterisk I need to use, but while calling a function, line number 19, this is the way we call a function, while calling a function just we pass the name of a pointer। okay, so this is what a simple way से program भी पूछते हैं, swap the value of variable by using pointers। okay, so हम यहाँ पे भी डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज ये किया है swap वाला। okay, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको यूजिंग फंक्शन नहीं पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ पे स्वैपिंग भी करके आप लिख सकते हैं कोड। ओके, सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज accessing array and that means storing data into the array and taking data from an array by using pointer. Second is pointer to the pointer, and third is using or passing a pointer as a parameter to a function। okay, फंक्शन में अगर हमें कैसे करना है तो डिक्लेयर करते समय हम एस्ट्रिक यूज करते हैं, कॉल करते समय हम एस्ट्रिक यूज नहीं करते। ओके, इतना याद रखना है। दिस आर सम सिंटैक्स। ओके, फॉर्मेटिंग है, सिंटैक्स है, कैसे यूज करना है, कैसे नाम लिखना है, पॉइंटर में वही आपको याद रखना है। ओके, कैसे उसको यूज करना है, अगर उसके अंदर का डेटा चाहिए तो एस्ट्रिक, उसका एड्रेस डिक्लेयर करना है तो %, ये ऑपरेटर्स कैसे यूज करने हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा।